Creative Stuff Media presents Tom Talk on Mic Season 1. तो आज हम लोग एनेस्थीसिया के बारे में जानने वाले हैं और उसी के लिए हमारे साथ है एनेस्थीसियोलॉजिस्ट डॉक्टर दीपाली राउत। तो स्वागत है आपका हमारे इस पॉडकास्ट शो पर जिसका नाम है टॉम यानी टॉक ऑन माइक। ये पॉडकास्ट शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हम लोग एक पॉडकास्ट के एंड में हम लोग एक गेम खेलेंगे जिसका नाम है मिथ एंड फैक्ट। इसमें मैं आपको कुछ क्वेश्चंस पूछूंगा, आपको सिर्फ बताना है वो पर्टिकुलर क्वेश्चन मिथ है या फैक्ट है। मेरा फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि मुझे आपकी जर्नी के बारे में जानना है, मतलब आपका फर्स्ट एक्सपीरियंस क्या था एज आपको अगर याद होगा तो। एज एन एनेस्थेटिस्ट, हाँ। see basically when we are doing our PG, we go through a lot of cases, like then we do with our seniors and everything, so that is a very support. But then when I did my first individual case, like it's almost after like third post we do, that's almost 1.5 year later we start doing our cases. In that I remember one case specifically because that was like awake brain surgery. And that was almost in the night, around 9 o'clock we started that. And I had to keep the patient awake for that procedure. And at the same time, the patient has to be under, like, the patient should not get pain. So that was a very nice case. And that was I always remember that case. But that was not my first case. अच्छा। In between whatever, which I can remember specifically. तो आपको इस फील्ड में कितने साल हुए कंप्लीट? Including my studies, it's almost 24 years now. 25 years now. तो ये जो एनेस्थीसिया देते हैं लोगों को, तो वो पेशेंट के एज या उसकी बीमारी या उसका जो ऑपरेशन रहता है उस हिसाब से देते हैं या कैसे रहता है? Actually, it depends on all the factors. It's not just like age or just your procedure, what is there, or what other, as a person. It is combination of things, and we decide on table, we just plan out the things in our mind, like, okay, yeah, this patient had such things, the age is like this, and the procedure time is going to be like this. So accordingly we decide like what anesthesia is to be given to the patient. अच्छा, तो जो एनेस्थीसिया देते तो उसके क्या टाइप, मतलब एक तो इंजेक्शन से देते हैं और दूसरे कोई चीज है जिससे एनेस्थीसिया दिया जाता है? No, basically anesthesia is given through injection most. It is it's like you cannot say injection per se. That thing is people have that thing in the mind, injection. No, it's not like that. See, whatever you have to take an IV line for a patient. IV line is that आप जो saline लेते हो, right? So any operation, any procedure, you need to have that thing, IV line. अच्छा. Okay, जो intravenous line रहता है वो. So उससे we give the things, or we have to make a combination of stuff. It's not just like there are different types of anesthesia actually. Recently for short procedures, some people do use mask and inhalational agents to finish the procedure, but you need to secure the IV line for any procedure. तो जो एनेस्थीसिया देते तो उसका कुछ अमाउंट होता है कि इतना ही देना है या यूनिवर्सल है, सबको उतना ही देना? It is not universal. We decide, like some procedures are for just half an hour. Some procedures take around 6 hours. So there are the dosing things are there. Like for this procedure, we might need this much dose. Long procedure के लिए we need to continue the thing. So we have to give accordingly. It's not like इतना ही है उतना ही है. Again, अभी आपने डोज की बात की, हर एक पेशेंट के वेट के हिसाब से, एज के हिसाब से डोसिंग रहता है. सो हर एक पेशेंट को अलग अलग रहता है. इट्स नॉट यूनिवर्सल फॉर एनी पेशेंट एज सच, बिकॉज सी नाउ यू आर सच अ थिन पर्सन. So for you, it's going to be different. Some person is going to be obese. For him, the dose requirement is different. Apart from that, now the new generation, they're so used to drugs and everything. They need very high doses. अच्छा. Yeah, we experience. Yeah, definitely. Definitely. तो ये एनेस्थीसिया आपने दिया तो आपका काम हो गया, तो आप ऑपरेशन एंड होने तक वहाँ पे अवेलेबल होते हो या? Yes, we have to wait till अच्छा. Because basic patient का सारा parameters like is in an anesthetist's hand. Like the BP, the pulse, the respiration, so many things are managed by the anesthetist. अच्छा, तो उसके साइड इफेक्ट्स आफ्टर ऑपरेशन वो होते हैं कि किसको? जो पेशेंट है? No, not at all. नहीं, not at all.
तो इसके कोई भी साइड इफेक्ट्स नहीं नथिंग है? नथिंग अच्छा। नथिंग नथिंग तो पर्टिकुलर इसकी एक दवाई आती है या बहुत से ब्रांड्स है वो पर्टिकुलर दवाई के एनेस्थीशिया जो बॉटल देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स वी यूज अ कॉम्बिनेशन अच्छा not just one thing because you cannot give one thing in loads. It's just management of everything. Basically the pain should go, the patient should have amnesia या patient should not remember what has been done. अच्छा Okay, मेन तो उसका पेन जाना चाहिए, उसको याद नहीं रहना चाहिए कि क्या हो रहा, लाइक यू नो लाइक इफ यू जस्ट इमेजिन कि आपको ऑपरेशन में कट ले रहे हैं एंड इफ द पेशेंट रिमेम्बर्स दैट इट्स नॉट गुड. बराबर So that should go. And even post-operative, the post-operative also patient should not feel more pain. सारी वो चीज़ें आती है इसमें. अच्छा तो बात करते समय एक ऐसा क्वेश्चन सिली क्वेश्चन है कि No, सिली कोई क्वेश्चन नहीं रहता नहीं है. मतलब ऐसे दिमाग में है कि एक अगर आपने एनेस्थेशिया दिया ऑपरेशन शुरू हो गया लेकिन डॉक्टर को लग रहा है कि अरे नहीं थोड़ा सा मतलब हलचल दिख रही है वो बॉडी के हाँ, अंदर तो है हमारे पास सब. तो आप फिर से वो एनेस्थेशिया देते हो या ऐसा कोई कुछ होता नहीं है? बेसिकली ऐसे कुछ होता नहीं. वी हैव लाइक एट रेगुलर इंटरवल्स वी नीड टू गिव द ड्रग्स. अच्छा इट इज़ नॉट लाइक एक बार दिया एंड काम खत्म. ऐसे नहीं रहता है. अगर सी देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनेस्थेशिया बेसिकली. तो इट स्टार्ट्स फ्रॉम दैट. एनेस्थेशिया इज नॉट जस्ट एक कुछ तो किया एंड फिनिश. नो, देयर आर डिफरेंट वैराइटीज. देयर इज समथिंग कॉल्ड एज लोकल एनेस्थेशिया, देयर इज समथिंग कॉल्ड एज ब्लॉक्स, then we have regional anesthesia, then we have general anesthesia. So it depends on everything, like what I'm giving to the patient. अच्छा Yeah, वो भी होता है सर exactly. डिफरेंट टाइप्स के हाँ, अगर रीजनल आप दो पेशेंट को तो वो रीजनल जब हम ड्रग देते हैं तो उसका एक पर्टिकुलर एक्शन रहता है एंड वी गिव टू द पेशेंट ओनली वो प्रोसीजर उतना टाइम का रहे तो. हाँ समझ रहे हो आप? अगर हमें लगा नहीं ये प्रोसीजर को इतना टाइम से ज़्यादा लगने वाला है, we go for GA, general anesthesia. अच्छा Or sometimes अगर लगा नहीं बाबा, even if the procedure is long, we can give blocks to the patient. The blocks also will last for a very long time. ब्लॉक्स क्या होता है? ब्लॉक्स यानी बेसिकली पेशेंट को हम जस्ट सिडेशन देते हैं. सिडेशन यानी सुला देते हैं एंड देन वी गिव इंजेक्शन जस्ट टू नम योर हैंड्स और जस्ट नम योर लेग्स, अ सिलेक्टिव पार्ट ऑफ योर बॉडी, नॉट फुल बॉडी. तो बेसिकली एनेस्थीसिया करता क्या है? मतलब वो मेडिसिन जाके उस पार्ट को पैरालाइज कर मतलब नम वही आपने बोला exactly, कि वही कर पैरालिसिस, नमनेस वो कर देता है. अच्छा ऐसे कोई जब पूरी बॉडी को जब कट करते तो ही ये एनेस्थीसिया यूज होता है या हर ऑपरेशन में यूज होता है? मेन इज एनेस्थीसिया इज रिक्वायर्ड फॉर ऑल ऑपरेशंस. वो छोटे हो या बड़े? एग्जैक्टली. अच्छा आप इमेजिन करो आपको छोटा बॉइल हो, आप बिना एनेस्थीसिया के उसे कट कर पाएंगे? नहीं. It is very painful. It is very painful. So you have all the procedures do need anesthesia in some way or the other. हाँ. Okay, because you can't give pain to a person. तो ऐसा कोई ये नहीं होता कि अगर एक पेशेंट है उसके ऊपर ऑपरेशन हो गया, वो ठीक हो गया, वो चला गया और फिर से अभी उसको कुछ ना कुछ हुआ है, फिर से उसकी सर्जरी है तो फिर एनेस्थीसिया देना पड़ेगा. तो बार बार देने से कुछ प्रॉब्लम्स कुछ नहीं होता? एब्सोल्युटली नॉट. तो इन फ्यूचर भी नहीं? कुछ भी नहीं. अच्छा और उसकी मतलब छोटे बच्चों से लेकर बूढ़े तक यूज कर? हाँ एनेस्थीसिया अभी कितने छोटे छोटे जस्ट न्यूबॉर्न बेबीज, उनको कुछ तो कंजेनाइटल डिफॉर्मिटीज रहता है विच नीड्स टू बी ऑपरेटेड इमीडिएटली. तो you have to induce that patient. Induce is like you have to give anesthesia to that child to perform that procedure. तो आपको ऐसा कुछ मतलब इमरजेंसी में कॉल्स आते हैं या? हाँ तो that was very instant. तो yeah, basically yes, we have emergency calls. In fact सीजर्स वगैरह, सीजेरियन सेक्शंस, नाइट में कितने कॉल्स आते हैं. अच्छा तो ये जो टॉपिक है मैंने निकाला है उससे ये जानना है कि इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस क्या है एनेस्थीशियन के. आप एनेस्थेशियोलॉजिस्ट, एज एन एनेस्थेशियोलॉजिस्ट, सी एडवांटेजेस इफ यू लव योर वर्क, इफ यू लव योर प्रोफेशन, आई डोंट थिंक सो देयर आर एनी डिसएडवांटेजेस. एंड बेसिकली आई लव व्हाट आई एम डूइंग एंड आई एम अ वेरी वर्कहॉलिक पर्सन. सो फॉर मी I don't think there are disadvantages choosing an anesthesia branch. और अगर आप
आप ये सीख रहे हो तो एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस किसी को अगर कोई जो देख रहा है बच्चा इसको एनेस्थेशियोलॉजिस्ट बनना है तो आप उसे ऐसे क्या सजेस्ट करोगे कि ये चीज़ें ना करे या ये चीज़ें करो ऐसा इन द फील्ड? हाँ, इन द फील्ड या सी अगर किसी ने एनेस्थेशिया लिया ही है तो डेफिनेटली उनको मोटिवेट ही करना है एंड वी शुड सी टू इट कि दे स्टार्ट लविंग द ब्रांच. Once you're passionate and you're dedicated and sincere, then it holds, like, no, basically this point holds true for any field for that matter. It is not just my field. बराबर. If your attitude, if your views are like this, then you can succeed anywhere. तो आपने बोला कि एक बहुत से उसमें टाइप्स होते हैं, एक जनरल होता है और बहुत से ऐसे टाइप्स होते हैं, तो उसके बारे में अगर आप कुछ बताओगे तो बेसिकली देखो कितने टाइप्स होते हैं? टाइप्स ऐसे सी नाउ देयर इज वन टाइप ऑफ एनेस्थेशिया वेयर द पेशेंट इज अवेक एंड वेयर द थिंग इज टू बी डन. You anesthetize the patient only in that much part. Okay, the patient is awake, everything. This is like, patient can come to the clinic of a doctor and just push off immediately, can go immediately. Okay, I can give you an example, like if you have a injury, डीप इंजुरी, आपको सूचर्स टाके डालने पड़ते हैं. कभी इंजुरी बहुत डीप रहती है ना, आपको सूचर्स लेने पड़ते हैं, तो आप विदाउट एनेस्थेशिया तो ले नहीं सकते. पेशेंट विल क्राई इन पेन. सो व्हाट यू डू इज यू टेक द लोकल एनेस्थेटिक एजेंट एंड यू इंजेक्ट इन दैट मच एरिया. अच्छा, टेक द सूचर्स, यानी टाके ले लो आप, एंड पेशेंट कैन गो होम इमीडिएटली. दैट इज कॉल्ड लोकल एनेस्थेशिया. ओके, अच्छा. नाउ देयर इज समथिंग कॉल्ड एज regional anesthesia, I would say blocks plus general anesthesia. In the sense we make the patient sleep. Patient को हम सुला देते हैं, यानी नींद का दवा दे देते हैं, and then we anesthetize a particular part of the body. यानी सिर्फ हाथ को numbness करना है, उसको upper limb blocks बोलते हैं, या सिर्फ leg को करना है, like no leg, यानी even one leg we can do, और just knee के नीचे का कर सकते हैं, या only you can just on the wrist you can give a block, तो आपका wrist ही सिर्फ anesthetize हो जाए. जिस पार्ट की सर्जरी है वो पार्ट आप नम कर सकते हैं. Yes, that is one type. Another is like regional spinal anesthesia, where you can give an injection in your back and then only the lower limbs get anesthetized. यानी आपके नीचे वाला हिस्सा, कमर के नीचे का हिस्सा बेहोश हो जाता है. Okay. एंड द फोर्थ इज जनरल, यानी टोटल आपको एनेस्थेशिया दे देते, पूरा सुला देते. तो आपके पास ऐसे कोई कॉम्प्लिकेटेड केस आई होगी, और कोई अगर मतलब हार्ट पेशेंट होगा या बुजुर्ग? यस, अभी मैंने तो ऑलमोस्ट 103 या 104 ईयर्स को भी ऑपरेट किया है. अच्छा. यस, उनको फ्रैक्चर हुआ था हिप बोन का, द हिप फ्रैक्चर, फीमर फ्रैक्चर जो बोलते हैं उसको, उनको वो हुआ था, उनको हमने ऑपरेट किया है. अच्छा, तो कॉम्प्लिकेशन जैसे? नहीं, एनेस्थेशिया एक्चुअली एट दिस एज अभी जो है बहुत सेफ हो गया है, बिकॉज द टेक्निक्स हमने जो पढ़ाई की थी सिंस देन इट हैज चेंज्ड अ लॉट. नाउ यू फील हमने वो पढ़ाई उतने उसके ऊपर नहीं, वी नीड टू अपग्रेड आवरसेल्व्स एवरी टाइम. वी डू रीड अ लॉट एट दिस स्टेज ऑल्सो. आई डू रीड अ लॉट and I keep changing my techniques to bring more safety to the patients. Every person has to do that, like actually. तो इसमें कुछ टेक्नोलॉजी के हिसाब से भी कुछ एनहांस हुआ है एनेस्थेशिया के फील्ड में? Yes, definitely. Initially जो ओल्ड एज में था वो सिर्फ क्लोरोफॉर्म कुछ तो मैंने तो वो सीखा भी नहीं है. अच्छा, हाँ. ऐसे कुछ तो डालते थे एंड देन उस पर एनेस्थेटाइज करते थे पेशेंट को. हम लोग वो एज में नहीं है. ये क्लोरोफॉर्म जैसे आपने बताया, तो जो फिल्म्स में दिखाते कि क्लोरोफॉर्म लगाया और वो हमने देखा ही नहीं है, कभी किया ही नहीं है जो चीज़, तो मैं कमेंट कैसे करूं? वो भी है, लेकिन मैंने कमेंट अबाउट समथिंग, मुझे कुछ पता ही नहीं है. अच्छा, नहीं, लेकिन मैंने ऐसा सुना है कि वो क्लोरोफॉर्म इतने जल्दी नहीं रिएक्ट होता है किसी पेशेंट मतलब से सुना होगा, नहीं, किसी इंटरव्यू से ही सुना है कि उन्होंने बोला कि अरे फिल्म में ऐसा दिखा दे कि लगाया और बेहोश हो गया, उसको किडनैप कर लिया. लेकिन ऐसा नहीं होता, थोड़ा सा उसे टाइम लगता है. ठीक है, अभी पता नहीं. exactly, तो हाँ, हमको तो नहीं सिखाया गया वो सब कुछ. बराबर, हाँ. तो वही आप टेक्नोलॉजी के बारे में तो अभी बहुत सी अभी जो मशीन्स है जो एनेस्थेशिया डिलीवर करती है, दे शो अस कि कितना गैसेस पेशेंट में जाता है. अच्छा. यस,
कि कितना इनहेलेशनल एजेंट जाता है, कितना एवरीथिंग इज कंट्रोल, कि लंग्स में कितना वॉल्यूम जाना चाहिए, कितना रेस्पिरेशन देना चाहिए, तब how much पहले से pressure we अभी can थोड़ा give. इजी हो गया है ऐसे बोल सकते हैं. यस यस, बिकॉज ऑफ ऑल टेक्नोलॉजी टेक्नोलॉजी, AI की वजह से ड्रग्स भी जो अभी जो मेडिसिन आए हैं वो भी बहुत सेफ हो रहे हैं. सेफ है. हाँ, तो ये इसका टाइम ड्यूरेशन क्या है? मतलब आपने एनेस्थीसिया दिया तो पेशेंट को कितने देर में ये बॉडी में रिएक्ट करता है? Immediately. Like I take the patient on the table, I speak, while speaking I give the drug इंजेक्शन. अच्छा. and हाँ. the patient is nicely sleeping. तो ऑपरेशन हो गया, उठने के बाद उसको दर्द महसूस होता है पर्टिकुलर ऑपरेशन का? मतलब See, post operative उतर जाने के बाद वो post operative pain management भी कुछ रहता है. There is something called as post operative pain management, and all the doctors see to it कि patient should not get post operative pain. तो उसके लिए मेडिसिन रहते हैं, पैचेस रहते हैं. पोस्ट ऑपरेटिव पेन मतलब ऑपरेशन के बाद जो पेन होता है हाँ हाँ, तो उसके लिए तो वो मतलब जरा भी नहीं रहता पेन? जरा नहीं, यू हैव दैट लिटिल फीलिंग थोड़ा सा है. हाँ. अनेस्थेसिया के टाइम पे जो रहता है वैसे नहीं रहता है, यू हैव लिटिल फीलिंग कि यस है, पेन है. और जो आपने बोला कि वो पेशेंट देख रहा है अपनी सर्जरी हो रही है, पर्टिकुलर एक ब्लॉक, आपने बोला कि ब्लॉक एनेस्थेसिया रहता है, तो पर्टिकुलर पार्ट को नमनेस मतलब नम करते हैं, तो वो देखते समय वो बेहोश वगैरह नहीं होता खुद की? नहीं, उसके पहले हम लोग उसको सुला भी देते हैं ना. अच्छा. नहीं, अगर थोड़ा स्लीपिंग इंजेक्शन देते हैं जिससे उनके पैरामीटर सब नॉर्मल रहे, लाइक दे आर स्लीपिंग, दे आर ब्रीदिंग, दे आर डूइंग एवरीथिंग, एंड देन वी ब्लॉक द लिम्ब. और आपने ये अपनी जो कैटेगरीज बताए एनेस्थीसिया की 4 जो कैटेगरीज आपने बताए, तो उसमें आपने बोला कि बैकबोन में सॉरी स्पाइन में ये करते. स्पाइन ऑल्सो यू कैन नॉट, हाँ यू कैन से लाइक इट इज. हाँ स्पाइन, तो उससे कुछ स्पाइन में कुछ तकलीफ होती है? कुछ भी नहीं होता, बिकॉज अभी जो नीडल्स रहते हैं स्पाइनल एनेस्थीसिया के लिए, आपके बाल है उससे वो थिन रहते हैं, दे आर सो थिन. अब जो ये इंजेक्शन लेते हैं ना हाथों में, या डर नहीं होता? नहीं, दे आर वेरी स्टेबल. अच्छा. 27 gauge we use nowadays, they are so tiny. तो वो एक मैंने वीडियो देखा था, वो लोग कांच की बोतल रहती है उसे वो तोड़ते हैं और फिर इंजेक्शन से मतलब वो खींचते हैं लिक्विड जो मेडिसिन रहते हैं, तो उसमें जो टाइनी पार्टिकुलर्स जाते हैं वो इसके कांच के, तो नहीं जाते, उस पे फिल्टर रहते हैं, स्नैप ऑफ एम्प्यूल्स रहते हैं. अच्छा. इट इज़ नॉट लाइक आप ये कोई घर की कांच तोड़ू, नॉट लाइक दैट. वो स्नैप ऑफ एम्पल्स प्रॉपर्ली टूटते हैं. तो जरा भी उसके छोटे जब एस्पिरेट हम करते हैं तो हम नीडल लगा के एस्पिरेट करते हैं, तो नीडल का वो जो बोर रहता है ना, जो बहुत ही छोटा, वो छोटा रहता है, उसमें से वो आ ही भी नहीं सकते, उसमें कुछ फिल्टर वगैरह नहीं होता. अच्छा. बट सब स्टेराइल रहता है. इफ यू डू एनीथिंग इट इज़ ऑल स्टेराइल. अगर कोई आपके पास एंशियस पेशेंट आया तो आप उसे कैसे हैंडल करते हो? बेसिकली देखो, एनेस्थेसिया इज नहीं जस्ट ऐसे ऑपरेशन थिएटर में लिया एंड एनेस्थेसिया दिया, ऐसे नहीं रहता है. व्हेन द पेशेंट कम्स टू अस, सी इन द रिकवरी, हम लोग बात करते हैं पेशेंट के साथ, वी ट्राई टू बिकम वेरी फ्रेंडली विद देम, लेकिन उनको कंफर्टेबल करना है, बिकॉज आप लोगों को वो मूवीज में जैसे थिएटर और बिटर सब स्कैरी लगता है, बट इट इज़ नॉट लाइक दैट इन द ऑपरेशन थिएटर. एक्चुअली वी मेक द पेशेंट वेरी काम. Like we talk to them. If the patient is very anxious, we have to give that much support to the patient. So then when we take him in the OT, we see to it कि he is sedated immediately. So he should not feel that fear or that anxiety about things. Pressure और ये सब बढ़ा के problem हो सकती है. Yes. तो आपके कुछ ऐसे पेशेंट्स, मतलब आपके साथ ऐसा कुछ हुआ है कि थोड़ा ऑपरेशन के टाइम पे थोड़ी सी गड़बड़ हो गई या ऐसा कुछ? Smooth sailing is not there in any field. So in my field also definitely smooth sailing तो होता ही नहीं है. Ups and downs तो रहते ही हैं. Yes, there are complications, but we should be prepared to handle it. Complication कोई भी प्रोसीजर का हो सकता है, किसी भी चीज़ का हो सकता है. उसको हैंडल करना, टैकल करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट रहता है. बिकॉज अभी ऑपरेशन के टाइम पे कितना ब्लीडिंग होगा, ना वो सर्जन के हाथ में रहता है, ना वो एनेस्थेटिस्ट के हाथ में रहता है. और वो हैंडल कैसे करना है, या पेशेंट का हार्ट कैसे रिस्पॉन्ड करता है. सो
it is not in our hands. But we should know how to manage it and get the patient to safety, or like to the dog properly. हाँ, comfort. Yes. तो ऐसे कुछ पेशेंट्स आए होंगे, ऑफ कोर्स आपने देखे होंगे कि मतलब एक्सीडेंट, बहुत ही बुरा ऐसा एक्सीडेंट हुआ है और वो मतलब 0% मतलब वो मरने ही वाला है, लेकिन ऐसा ये हो गया कि नहीं वो बच गया. ऐसा कोई आपने केस देखा है या आपने हैंडल किया है वैसा केस? एटलीस्ट मैंने हैंडल, आई डोंट नो, ऐसे इमरजेंसी में आते हैं पेशेंट्स, बट देन यस किया है. एक ट्रॉमा का पेशेंट आया था. ट्रॉमा इज बेसिकली, सी यंगस्टर्स आजकल ना, द वे दे राइड द बाइक एंड ऑल, इट्स वेरी स्कैरी. दे फील इट्स फन, but then they should be a little careful, because what patients we see in the trauma, it's very bad. We feel bad for the child also, and what the parents go through. Yes, so they should be a little careful about the fun they have, because आप अगर गिर गए, आपके हाथों को ही लग गया, आगे कुछ कर ही नहीं पाए, तो क्या फायदा है? One thing I want to say, I used to ride a bike initially, but seeing the trauma patient or hand injuries, I have stopped riding at least a bike, a bicycle, or whatever the thing is. I try to be in a 4-wheeler. Even if I go pylon, I'm very careful. बराबर. कार में भी अगर आप जा रहे हो आगे पीछे से, हाँ डेफिनेटली हो सकता है, बट सेफ है थोड़ा, एयर बैग्स और इसके वजह से. यस. तो जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था कि हम लोग पॉडकास्ट के एंड में गेम खेलेंगे, मिथ एंड फैक्ट. तो अभी हम लोग वो शुरू करते हैं. तो फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि लोग जनरल एनेस्थीसिया ज़्यादा प्रेफर करते हैं कंपेयर टू स्पाइनल एनेस्थीसिया. एक्चुअली देखा जाए तो स्पाइनल एनेस्थीसिया, जनरल एनेस्थीसिया, बोथ आर सेफ. इट ऑलवेज डिपेंड्स ऑन द पेशेंट कंडीशन, पेशेंट के ओवरऑल इसके ऊपर, प्रोसीजर के ऊपर, कि कौन सा एनेस्थीसिया बेटर है. आई थिंक पीपल शुड लीव दिस डिसीजन टू द एनेस्थेटिस्ट कि क्या करना है, कौन सा एनेस्थीसिया देना है. लेट द एनेस्थेटिस्ट ओनली डिसाइड, रादर देन कंपल्सरीली टेलिंग देम कि नहीं हमको जनरल एनेस्थीसिया ही चाहिए या हमको आधा ही चाहिए. बिकॉज पूरा ही बॉडी, हाँ जनरली पूरा बेहोश करो, पूरा बेहोश करो, ऐसे. दे शुड नॉट हैव दैट थिंग इन द माइंड, बिकॉज I think anesthetist is the best person to decide कि what is to be done. और इतने साल उसने निकाले हैं तो yes. ऐसे ही नहीं, उनको वो सिर्फ डर लगा रहता है, अरे आधा बेहोश करेंगे, हम जागे रहेंगे तो हमको डर लगेगा. But it's not like that. Nowadays we make the patient sleep. Patient को पहले हम लोग सुला देते हैं, उसके बाद अगर कुछ करना है, whatever anesthesia we have to give, we give. So that fear is also not there now. अच्छा. And there is nothing कि ये safe है क्या वो safe है. All anesthesia are good. पर देर आर सम थिंग्स, अगर आपको चेस्ट इश्यूज रहेंगे और आपको जनरल एनेस्थीसिया दिया, देन यू कैन लैंड अप इन कॉम्प्लिकेशंस. तो आप ऐसे ये नहीं होना चाहिए कि नहीं हमको जनरली चाहिए. एट दैट टाइम रीजनल, दैट मीन्स स्पाइनल और एनी रीजनल एनेस्थीसिया इज ऑलवेज सेफ फॉर यू rather than going for a general anesthesia. So let the anesthetist take the decision for yourself. Like you put yourself in the विश्वास रख के आए हो हॉस्पिटल में, तो जाना है और विश्वास रखे वो एनेस्थेटिस्ट के हाथों में जाना है. बराबर, आपका अच्छा ही होगा. एनेस्थीसिया ऑलवेज लीड्स टू अनकॉन्शियसनेस. ये मिथ है या फैक्ट है? इट्स इन अ वे इट्स अ मिथ, बिकॉज अगर आप लोकल एनेस्थीसिया देंगे तो उसमें अनकॉन्शियसनेस कहाँ आता है? या आप सिडेशन दोगे, पेशेंट इज नॉट अनकॉन्शियस, सो इट्स अ मिथ. एनेस्थीसिया इज डेंजरस एंड कैन बी लीथल, मतलब डेथ हो सकती है किसी की एनेस्थीसिया देके? नहीं, एनेस्थीसिया कैन नॉट बी डेंजरस. अगर उसकी अमाउंट भी अगर ज़्यादा हो गई तो भी नहीं डेंजरस हो सकता? मेन थिंग देखो कैसे रहता है, when you're taking anesthesia from expert hands, like from a proper person who has done anesthesiology, anesthesia basically, तो वो तो कभी ऐसे करेगा ही नहीं कि ओवरडोज देना ही देना है. बराबर. एंड आई डोंट थिंक किसी डॉक्टर को ऐसे होना चाहिए कि उसके पेशेंट का बैड होना चाहिए. बराबर. तो इफ ड्यू टू सम कॉम्प्लिकेशंस, इफ ड्यू टू समथिंग और सम अदर रीजंस कुछ हुआ, तो इट्स अ डिफरेंट फैक्ट, इट्स अ डिफरेंट थिंग.
but per se anesthesia is not dangerous. And like, you know, such things no one would like to do. You can wake up during surgery due to anesthesia failure. Can happen sometimes. अगर कुछ मशीन में इशू रहेगा, उतना गैस डिलीवर नहीं हुआ. अच्छा. But it's a very, like, you know, 0.0000001. कभी हुआ होगा तो. I have not heard. अच्छा, तो ये See, we cannot deny anything. हाँ. We cannot deny those things, but we cannot say कि it will not happen only. कभी तो हो सकता है. Exactly. कभी ना कभी हो सकता है. Yeah. मतलब अभी तो मिथ बोल सकते हैं. Yeah, you can say. जब तक हुआ नहीं तब तक तो मिथ ही है. Yes. Anesthesia is only for major surgeries. Anesthesia is for all surgeries. ये तो हमारी बात हुई. Yes, any operations, any procedures, small, big, anything. मतलब ये तो मिथ ही है. मिथ ही है. Anesthesia is the same for everyone. ये भी एक्चुअली हुआ है हमारा. तो बताने की जरूरत नहीं है. तो ये मिथ ही है. Yes. आप ही सब आंसर कर रहे हैं. ये बात हुई है इसलिए. Right. Anesthesia causes long-term memory loss. Not at all. Even I have taken anesthesia many times. I don't think so I have a memory loss. It's a myth. तो myth it's है. a myth. Anesthesia is addictive. No. नहीं. Otherwise, people will come to me again. I will be very rich then. Yes. Older adults should avoid anesthesia. I told you, 104 years I gave anesthesia. बराबर. मतलब ये जो एक्चुअली है वो सब मिथ ही है. सब चीज़ें हमारी कवर हो चुकी है, लेकिन फिर भी हम लोग पूछते हैं कि yeah, it's a general public thinking, so it is. Anesthesia affects only the body, not the mind. ये तो है, मतलब वो मेमोरी लॉस में ही आ गया. हाँ, exactly. कुछ Anesthesia is always administered through injections. वो तो फर्स्ट पॉइंट था हमारा. सारे क्वेश्चन ही सारे मिथ ही है. ये हमारे स्पाइन का भी हो ही गया है कि इंजेक्ट करते हैं. और एक पॉइंट मुझे आपको बताना है स्पेशली. वो स्पाइन, आई डोंट नो से रिलेटेड. हाँ, नॉट स्पाइन, देयर इज समथिंग, उसको स्पाइनल एनेस्थेशिया बोलते हैं. अच्छा. इट इज़ नॉट बैकबोन में एनेस्थेशिया, इट इज़ नॉट स्पाइन में एनेस्थेशिया. पर पीपल हैव, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग आई जस्ट वांट टू से हियर कि पीपल हैव अ फीलिंग कि वो स्पाइनल एनेस्थेशिया लेने की वजह से हमको बैक एक हो रहा है. अच्छा. कंप्लेंट्स ऑफ मेनी पीपल, लाइक यू नो मेनी पीपल, अरे वो हमने इंजेक्शन लिया ना पीठ में इसलिए हमको पीठ दर्द हो रहा है. लेकिन यू सी द पेशेंट्स, लाइक अगर आप जनरल पॉपुलेशन में 100 पीपल देखेंगे, अराउंड 70 पीपल को या 80 पीपल को बैक पेन रहता है. अभी उन्होंने सारों ने तो नहीं लिया रहता है वैसी है इसलिए इंजेक्शन, बट दे डोंट वांट टू पुट एफर्ट्स ऑन देयर बॉडी. अगर आप एक्सरसाइज करो, प्रॉपर हेल्थ का ख्याल रखो, अगर आपको इतना बड़ा पेट आए, अरे वो इंजेक्शन लिया ना उसके वजह से पीठ दर्द हो रहा है. अच्छा, पीठ दर्द. हाँ. इट इज़ नॉट लाइक दैट. एंड स्पाइनल, अभी जो नीडल्स हम लोग यूज़ करते हैं, दे आर सो टाइनी, कुछ नहीं उससे होता है. बट दैट थिंग हैज़ गॉन एंड वो एक दूसरे को बोलते रहते हैं, अरे तेरा उसके वजह से है. रादर देन वो बोलने से अच्छा है कि यू स्टार्ट एक्सरसाइजिंग, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. या फिर आप लोगों से सुनने के exactly and blaming the doctors and the injection rather than, normally it is a tendency, people need to blame others for their own faults. बराबर. That's a normal people tendency. So that is the thing. नहीं तो वो human ही नहीं है. You are obese then they are not human. Yeah, that's what. अगर आप खुद का ख्याल नहीं रखते तो आपको बैक एक होना ही है. बराबर. तो करो, आपको बैक लाइफस्टाइल ही वैसी है कि ऑफिस में भी exactly बैठ के ही काम सब होता है. Don't blame please Work from home only. spinal anesthesia for backaches. That's the most important thing I would like to convey. So people who smoke may need more anesthesia than non-smoker. Not exactly, but वो more anesthesia is required for people who take drugs and everything and alcohol and everything. अच्छा, मतलब वो
बिकॉज आजकल ड्रग्स का बहुत ये हुआ है, लाइक यू नो so many youngsters they take drugs and everything and then we have issues and we understand while giving the medicine only we understand this patient must be taking कुछ तो ड्रग्स लेता होगा ये. अच्छा, तो आपको कैसे समझ में आता है? ब्लड टेस्ट या नहीं ब्लड टेस्ट नहीं, उसके बिहेवियर से? बिहेवियर नहीं, द अमाउंट ऑफ द ड्रग, द अमाउंट ऑफ मेडिसिन व्हाट आई हैव टू गिव हिम टू गेट हिम अंडर इन द सेंस अनेस्थेटाइज करने के लिए जितना मेडिसिन लगता है, या वो अंदाज़ा आ जाता है हमको. वी गेट टू नो ड्रग्स आर नॉट गुड, दे आर नॉट गुड एंड मोस्ट ऑफ द आजकल सब लोग 1-2 बार तो लिया हुआ ही रहता है मोस्ट ऑफ द पीपल ने. अच्छा, सो मेनी ऑफ देम इवन इफ यू टेक वंस और ट्वाइस, इवन 6 months बैक और 3 months बैक, सेम थिंग इज देयर होता है. या तो अच्छा वैसे भी होता है कि हाँ एग्जैक्ट. अरे मैंने तो 1 बार ही लिया था, 2 बार ही लिया था. अरे तुमने 2 बार लिया था लेकिन हमको इधर देखो क्या हो रहा है. इट इज़ अ पेन टू द डॉक्टर. तो वैसे फिर वो उस पेशेंट को साइड इफेक्ट्स नहीं होते कि ड्रग की वजह से आपने ज़्यादा अमाउंट नहीं होता? बोले हम लोग को तकलीफ होती है, डॉक्टर्स को तकलीफ देना अच्छा लगता है लोगों को. एनेस्थेशिया डज नॉट ऑलवेज पुट यू टू स्लीप. एनेस्थेशिया yeah obviously now local anesthesia will not put you to sleep. जैसे ब्लॉक भी आपने बोला कि yes, तो ये फैक्ट है. does not always put you to sleep. हाँ. Yeah, in some things yes. बराबर. It वो cannot कैटेगरी be के said हिसाब से it cannot be a fact or it cannot be a myth also. Being heavy can increase your risk of complications. Yes, you mean to say obesity? Heavy in the sense you're saying obesity. Definitely. Why I'm telling you obesity, risk of complications, see not per se because of anesthesia, per se because of their body structure. अगर आप overweight होगे, anyways आपको breathing का issues रहता है. Imagine करो पेशेंट का पेट इतना बड़ा है, पेशेंट को अगर ऐसे सुलाना है वो ब्रीथ कर पाएगा क्या? आपकी इधर फुल फैट है, हाँ जमा है, हाँ एग्जैक्टली. आपको ऐसे ही आपके फिजिकल बॉडी की वजह से बहुत तकलीफें रहती है. So anyways that thing is carried on in all things, whether it is anesthesia, for that matter surgery, सर्जन को भी डिफिकल्टी आती है, अनेस्थेटिस्ट को भी डिफिकल्टी आती है, सबको डिफिकल्टी आती है. हैंडलिंग ऑफ द पेशेंट इज ऑल्सो सो डिफिकल्ट. उनको उठाना है ना, इट इज लाइक बाप रे. और जो वार्ड बॉयज वो रहते बहुत पतले होते हैं. नहीं बट दे ऑल स्ट्रॉन्ग. हाँ वो तो है, लेकिन ज्यादा करके वो पतले होते हैं, लेकिन उनका वो काम ही है. ओबेसिटी इज लाइक यू नो, आई एम नॉट सेइंग कि आई एम नॉट बॉडी शेमिंग और आई एम नॉट सेइंग एनीथिंग अबाउट ओबेसिटी. बराबर है, हाँ. बट या डेफिनेटली, लेकिन अगर आप खुद पे ध्यान नहीं दोगे तो ऐसे फिर प्रॉब्लम्स आ जाएंगे. एग्जैक्टली. तो इसी के साथ आज का ये पॉडकास्ट शो यहीं पे समाप्त होता है. तो आपसे बात कर बहुत अच्छा लगा और सेम ईयर हमारी तरफ से एक छोटा सा गिफ्ट आपको. थैंक यू. और ये हम कैप भी हमने प्रिंट किया है, तो थैंक्स अ लॉट. ऐसे ही हमारे शो पर आते रहना और हमें ऐसे नॉलेज देते रहना.